अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है कन्वर्जन डिसऑर्डर। इसमें बहुत सारे मिलते जुलते टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर क्या है, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर क्या है, हाउ इज कन्वर्जन सिमिलर टू और डिसिमिलर फ्रॉम डिसोसिएशन, हाउ इज कन्वर्जन डिफरेंट फ्रॉम फैक्टिशियस डिसऑर्डर एंड मेलिंगरिंग। तो DSM 4 में कन्वर्जन डिसऑर्डर एक अलग से सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर की सब कैटेगरीज में शामिल किया है, जबकि ICD-10 में कन्वर्जन को एज पार्ट ऑफ डिसोसिएशन कंसिडर किया है, लिखा है कन्वर्जन डिसोसिएशन डिसऑर्डर। DSM-5 में कन्वर्जन को नाम दिया है फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। बहरहाल ये डिफरेंस आगे आपको क्लियर होता जाएगा। फिलहाल आज हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि कन्वर्जन डिसऑर्डर है क्या। पहले एक बैकग्राउंड कुछ मैं आपको सिनारियोज बता देता हूँ। आप ऑन एंड ऑफ ऐसे पेशेंट्स देखेंगे। देखिए, फीमेल student staff, a female nurse, she was a student of nursing course, she was brought to psychiatry ward, and उसके friends ने complain की कि she is suffering from fits और अभी भी उसे fits पड़ रहा है। So when I came to duty room, she was lying on the bed and she was showing fits, and fits continuous पड़ते ही जा रहे थे। So I asked कि कब से fits पड़ रहे थे, for the last half an hour fits इसके कंटिन्यूसली हो रहे हैं। तो एक तो जो ड्यूरेशन था दैट वाज डाउटफुल, उसके साथ एसोसिएटेड कोई भी कंप्लेंट्स नहीं थे, लाइक यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, टंग बाइटिंग, माउथ फ्रोदिंग। और फिर आई आस्क्ड के हैज देयर बीन recently an event in her daily routine, in her life, an important personal life event। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी हाँ, आज इसकी बर्थडे है। That was enough for me to conclude that something has happened on her birthday. She might not have received an important wish, or something else may have happened. That psychological stress was converted into physical symptoms of seizures or convulsions or fits. A lady was brought to psychiatric OPD, and they were complaining, the family members were complaining that she cannot speak, and she has not been able to speak for the last few days. And when I tried to communicate to the lady, she was just showing us body gestures and just trying to convince me that I cannot speak. How can I communicate with you? So again, I had to talk to her in privacy. It is always better to talk to the patient of conversion disorder in isolation, in a privacy setting when nobody's listening to her. At least the attendants must not be there. So when I took detailed history and see, we have got some common wordings to use. अक्सर पेशेंट्स से कहते कि देखिए, हम डॉक्टर्स हैं, हम जानते हैं कि कोई परेशानी है जिसकी वजह से अलामात आपकी शुरू हुई है, और ये अलामात वाकई वजूद नहीं रखती। आपके सारे रिपोर्ट्स साफ हैं, तो जो भी आपके घर में परेशानी है आप वो बता दीजिए, वरना फिर फला फला इलाज होगा जैसे आपको दर्द होगा। तो some intelligent patients begin to speak at the spot, and some have to be dealt with by some other means, and they begin to talk. So she began to talk on slight convincing, and she mentioned that her husband was in Saudi Arabia, and he had been there for the last 2 years, and he had not visited even during a single time for the last 2 years. So ये देखिए स्ट्रेसर है, अनकॉन्शियसली उसको अफेक्ट कर रहा है, और ये स्ट्रेसर उसका फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो रहा है। Similarly, a young girl was brought with repeated episodes of unconsciousness. Again, those episodes of unconsciousness were not related to any tongue bite, any mouth frothing, or any typical presentation of fits.
So when she was talked to in isolation in privacy setting, she mentioned that a few days earlier she had got engaged to someone, uh, I think 20 years elder than her, and the person that she got engaged to was already married, and he had kids from that first wife, and she had not given any consent to this engagement. An unresolved conflict is again converted into a physical symptom, mostly occurring in females. Female to male ratios में बहुत high, आगे epidemiology में पढ़ेंगे. तो conversion disorder क्या है? It is a condition in which a psychological stress is converted, or an unresolved unresolved conflict is converted into neurological symptoms. And those neurological symptoms cannot be explained by any mechanism of pathology. There is no known cause identified. आमतौर पर मेडिसिन वाले वर्ड यूज करते हैं functional, so they turn out to be functional. So behind those neurological symptoms, there is no known pathology. So if a psychological stress or an unresolved conflict is converted into neurological symptoms which cannot be explained by any mechanism of pathology, and this condition is known as conversion disorder. An old term used for it was hysteria. It used to be considered a disease caused by uterus, by hystrus. Later on, they replaced this term hysteria by conversion. Freud was the first person who used the word conversion. Freud ने कहा कि कुछ unresolved, unconscious conflicts convert हो जाते physical symptoms में, जिससे conversion disorder arise होता है. So इसके कुछ features ये है कि वो जो symptoms हैं, they are not intentionally produced. Symptoms are not intentionally produced. Symptoms occur unconsciously. Because if they are intentionally produced, condition comes out to be either factitious disorder or malingering, और उन दोनों में भी अलग से difference है. Next, they are not due to substance abuse. उसमें कोई substance abuse की history नहीं होती. Third, they are not limited to pain. सिर्फ पेन नहीं होगा. अगर सिर्फ पेन की कंप्लेंट है फिर हम इसे स्पेसिफिक पेन डिसऑर्डर कंसिडर करेंगे, वो अलग से सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है. दे आर नॉट लिमिटेड टू सेक्सुअल डिसफंक्शन. अगर पेशेंट सिर्फ सेक्सुअल डिसफंक्शन के साथ प्रेजेंट हो और अगेन कॉज अननोन हो, तो हम उस सेक्सुअल डिसफंक्शन को कन्वर्जन डिसऑर्डर नहीं कहेंगे, उसे सेक्सुअल फंक्शन डिसऑर्डर में कंसिडर करेंगे. एंड फोर्थ, द गेन इज प्राइमरीली साइकोलॉजिकल. जो पेशेंट को प्राइमरी गेन मिल रहा है इस कंडीशन से, वो एक साइकोलॉजिकल गेन है. कैसे साइकोलॉजिकल गेन है? व्हाट इज गेन, व्हाट इज प्राइमरी गेन, व्हाट इज सेकेंडरी गेन, आगे हम स्लाइड्स में पढ़ेंगे. तो अब तक की एक जनरल डिस्क्रिप्शन ये है कि 4 फीचर्स क्या होंगे. These symptoms are not intentionally produced. They are not due to any substance abuse. They are not limited to pain or sexual dysfunction. अगर पेशेंट सिर्फ पेन की कंप्लेंट लेकर आता है तो हम उसे स्पेसिफिक पेन डिसऑर्डर में कंसिडर करेंगे. अगर पेशेंट सिर्फ सेक्सुअल डिसफंक्शन की कंप्लेंट के साथ आता है तो उसे हम सेक्सुअल डिसफंक्शन डिसऑर्डर में कंसिडर करेंगे. और जो पेशेंट को गेन मिल रहा है इन सिम्टम्स से, इन अनकॉन्शियस सिम्टम्स से, वो प्राइमरी गेन साइकोलॉजिकल होना चाहिए. कोई
फाइनेंशियल या सोशल गेन नहीं होना चाहिए। क्लिनिकल फीचर्स DSM-4 में उन्होंने 4 कैटेगरीज बनाए थे कि कुछ कन्वर्जन डिसऑर्डर के सिम्टम्स मोटर सिम्टम्स होते हैं, कुछ सेंसरी सिम्टम्स होते हैं, कुछ पेशेंट्स सिर्फ सीजर्स के साथ प्रेजेंट करते हैं और कुछ मिक्स्ड मोटर एंड सेंसरी कंप्लेंट्स के साथ प्रेजेंट हो सकते हैं। इसमें मोटर कौन से है, सेंसरी एक अलग कौन से है, एक अलग सी लिस्ट हम डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट फीचर ये है कि सच पेशेंट्स रिस्पॉन्ड टू सजेशन। Patients respond to comments, especially of doctors. Suggestibility ये है, अगर आप राउंड में एक कन्वर्जन डिसऑर्डर के पेशेंट के सामने कि ओहो ये कितना सीरियस है, देखिए ये बिगड़ जाएगा, तो पेशेंट में फॉलो योर कमेंट्स और उसी तरह से सीरियस सिम्टम्स शो करेगा। अगर आपकी सजेशन में आपने थोड़ा सा उसे कन्फ्रंट करने की कोशिश की तो थोड़ा सा सिम्टम्स अवॉइड करने की कोशिश करेगा। So patients respond to your comments, or we say patients respond to your suggestion. Next, उसके symptoms reinforced हो जाते हैं, reinforced by any help offered. If any help is offered to patient, उसके symptoms reinforced हो जाते हैं। Like patient अगर ये कहे कि मैं चल नहीं सकता, आप व्हील चेयर भी आगे कर दें, तो पेशेंट के सिम्टम्स मजीद reinforce होंगे, मजीद वर्स होते जाएंगे। If patient says I cannot walk, और आप उसकी सपोर्ट के लिए उसके साथ हाथ भी रखते हैं, उसके शोल्डर पे हाथ रख के या उसे हाथ से होल्ड करके आप उसको वॉक करने में हेल्प करें, अगेन सिम्टम्स गेट रीइंफोर्स्ड, जिसे हम डिस्करेज करते हैं इस थेरेपी में, इसकी थेरेपी में। A very important feature of conversion disorder is Bailey indifference, या इसे कहते हैं ला बेले इंडिफरेंस। देखिए ला बेले इंडिफरेंस ये है कि पेशेंट के सिम्टम्स की सिवियरिटी और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस मैच नहीं करते। I'll tell you an interesting story. When I was first year resident, a young female was brought in wheelchair and they were complaining that she cannot walk. She has suddenly lost power in her lower limbs. When we looked at the patient, patient was smiling. Symptoms देखिए बिल्कुल इतने severe हैं और facial expression ऐसा लग रहा है कि she is not concerned with these symptoms. So if patient seems to be unconcerned with the severity of symptoms, then this incongruous situation, this mismatch, this disagreement between her concern and symptoms, it is called La Belle indifference, and it is common in conversion disorder. Next is primary gain और सेकेंडरी गेन। इसमें प्राइमरी गेन मोस्टली क्या होता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर में जो प्राइमरी गेन पेशेंट को मिलता है वो एक साइकोलॉजिकल गेन है। हाउ इज इट साइकोलॉजिकल? कि पेशेंट्स को एक रिलीफ मिलता है, दे गेट रिलीफ बाय पुटिंग द एक्चुअल स्ट्रेसर इनटू अनकॉन्शियस। जो भी पेशेंट्स कन्वर्जन डिसऑर्डर के साथ प्रेजेंट करते हैं, इसमें वो अपना स्ट्रेसर जो भी स्ट्रेसर उनकी लाइफ में होता है, जो भी एक अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट होता है, they put that out of their awareness and they keep that in unconscious mind, and that's how they feel relieved temporarily. Psychologically वो relieve होते हैं, उनकी सारी तवज्जो स्ट्रेसर से हट जाती है और उन सिम्टम्स पर फोकस हो जाती है। ये एक प्राइमरी गेन है कि उनको एक साइकोलॉजिकल रिलीफ मिलता है। और सेकेंडरी गेन क्या है? सेकेंडरी गेन जो ऑटोमेटिकली फॉलो होगा वो ये होगा, फैमिली और अटेंडेंट्स और डॉक्टर्स और स्टाफ मेंबर्स उनको अटेंशन देंगे, सो शी गेन्स सम अटेंशन, शी avoids some responsibilities which she was supposed to do or he was supposed to do,
तो अक्सर पेशेंट्स को एक अटेंशन मिलती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनकी जान छूट जाती है। ये एक सेकेंडरी गेन है, ये प्राइमरी गेन नहीं है, ये सेकेंडरी गेन है। और वो इस सेकेंडरी गेन के लिए ऐसा नहीं करना चाहते, जो वो करते हैं अनकॉन्शियसली वो होता है प्राइमरी गेन के लिए। दे वांट रिलीफ फ्रॉम द स्ट्रेसर। थर्ड, दे आइडेंटिफाई विद समवन। आइडेंटिफिकेशन का कंसेप्ट आगे स्लाइड्स पर आप डिटेल में पढ़ना, उसमें ये दिया है कि इफ समवन डाइज इन द फैमिली, और जो लोग रह जाते हैं जिनमें पैथोलॉजिकल ग्रीफ होता है, उन लोगों में अगर कन्वर्जन सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं, तो जिस शख्स में कन्वर्जन सिम्टम स्टार्ट हो गए हैं, हो सकता है उसमें सिम्टम्स बिल्कुल उसी इंडिविजुअल के स्टार्ट हो जिसकी डेथ हुई है। जो डिसीज्ड इंडिविजुअल है जिसकी डेथ हुई है, उसी के सिम्टम्स हो सकता है उस ग्रीफ वाले इंडिविजुअल में स्टार्ट हो जाए, जो कि कन्वर्जन डिसऑर्डर के साथ प्रेजेंट हो रहा है। So the individual is identifying with symptoms of the deceased or dead individual. या ऐसा हो सकता है कि सिबलिंग्स में एक सिबलिंग में कन्वर्जन डिसऑर्डर के दौरान सिम्टम्स उसके एल्डर सिस्टर के स्टार्ट हो जाए, या उसके पेरेंट्स में से किसी के स्टार्ट हो जाए. So it is identification, and it commonly occurs in conversion disorder. So there is labile indifference, कि the patient is not concerned with the severity of symptoms. पेशेंट्स का प्राइमरी गेन ये होता है कि वो अपने स्ट्रेसर को अपनी अवेयरनेस से निकाल कर अनकॉन्शियस माइंड में रख लेते हैं, और उनको साइकोलॉजिकल एक रिलीफ मिलता है इससे। उनकी तवज्जो स्ट्रेसर से हटकर अपने सिम्टम्स पे फोकस होती है। थर्ड, उनको सेकेंडरी गेन जो मिलता है वो ये है कि उनको अटेंशन मिलती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से वो छूट जाते हैं, रेस्ट का टाइम मिल जाता है, ये सेकेंडरी गेन है। एंड दे ऑल्सो आइडेंटिफाई विद सिम्टम्स ऑफ समवन एल्स, that someone else may be a living individual or a dead individual. Now, some common symptoms. Motor symptoms where patients may present with involuntary movements, like involuntary movements of limbs. Patients may present with tics. Tic is abnormal movement of a group of muscles. ये सारे हम phenomenology में पढ़ेंगे. Next, they may present with blepharospasm. Blepharospasm क्या है? Forceful closure of eyelids. And patients cannot open their eyes then. So there is forceful closure of eyelids. It is called blepharospasm. Some individuals may present with torticollis. What is torticollis? ये एक acute dystonic condition है जिसमें पेशेंट का हेड नेक बिल्कुल ट्विस्ट हो जाते हैं और वो अपना नेक और हेड स्ट्रेट नहीं कर सकते. So a dystonic condition in which head and neck are twisted. So patients may present with involuntary movements, tics, blepharospasm and torticollis. Next condition उनकी है opisthotonus. What is opisthotonus? इसमें head, neck और spinal cord ये हाइपर एक्सटेंशन वाली स्टेज में चले जाते हैं. हाइपर एक्सटेंशन बिल्कुल एक आर्च की तरह पेशेंट के हेड, नेक और स्पाइनल कॉर्ड इस तरह से आर्च की तरह बेंड हो जाते हैं. ये ऑपिस्थोटोनस. लेट्स सी, अगर हमें इनका इमेज में, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको इमेज इसका दिखाऊंगा. सीजर्स के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं. सीजर्स, फिट्स, कन्वल्जन्स ये ऑलमोस्ट सिनोनिमस टर्म्स है. स्लाइट डिफरेंस न्यूरोलॉजिस्ट बताते हैं मगर सिनोनिमसली यूज करते हैं. पेशेंट्स में प्रेजेंट विद एबनॉर्मल गेट, दे में प्रेजेंट विद फॉलिंग अगेन एंड अगेन, एंड दे में प्रेजेंट विद एस्टेजिया अबेसिया. एस्टेजिया अबेसिया क्या है? एक अगेन वाइल्डली एटैक्सिक गेट है, एबनॉर्मल गेट है. इससे पेशेंट के ट्रंक में जर्की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और हैंड्स में वेवरी या वेविंग मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, and they may fall again and again. ये है एस्टेजिया अबेसिया. एबनॉर्मल
वाइल्डली ataxic gait, जिसमें ट्रंकल जर्की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और हैंड्स भी रफली वाइल्डली मूव करते हैं. They can present with paralysis of any limb. They can present with weakness of any part of the body, and they can present with aphonia, inability to speak. I think 3 weeks earlier we had a patient in our ward presenting with aphonia, and when I talked to her in isolation, initially she began to whisper and then she began to talk normally. And again, uski history आई थी कि her husband was in foreign country and he had been there for the last 2 to 3 years. That was a non-stressor. Now, sensory deficits, वो सारे motor deficits है. Sensory deficits में ये हो सकता है कि anesthesia हो. Anesthesia means loss of sensation in any part. Patient में blindness हो सकती है. Patient can present with blindness कि मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा. Patients can present with tunnel vision. Tunnel vision क्या है? कि they complain of loss of peripheral vision. उनकी विजन ऐसी हो जाती है जिस तरह से आप एक टनल में से देख रहे हो. जब आप टनल में से देख रहे होते तो आपको सिर्फ सेंट्रल पार्ट दिखाई देता है. आपकी सेंट्रल विजन इंटैक्ट होती है. पेरिफेरल विजन आपकी अफेक्ट फंक्शनल नहीं होती है. तो टनल विजन इज अ कंडीशन इन विच पेशेंट सफर्स फ्रॉम लॉस ऑफ पेरिफेरल field of vision. Patients may present with deafness and they may present with visceral symptoms of the other viscera, abdominal complaints of kidneys, complaints of the other viscera. Patients can present with psychogenic vomiting. It is very common in ER. And they may present with pseudocyesis, that is false pregnancy. Interesting case. Is it common in Pakistan? Yes. False pregnancy is very common. जिन लेडीज की जो इनफर्टाइल होते हैं, जिनकी औलाद नहीं होती, वो मज़ारों पे जाते हैं और ये दम तावीज़ करने वाले के पास जाते हैं और वो जो दम या तावीज़ करने वाले लोग हैं वो उनसे कमिट करते हैं कि यस हम आपके औलाद दिलवा के रहेंगे, बस आप फला फला अमल कीजिए, आप देखना 1 महीने के बाद आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे, आप कंसीव कर जाएंगे. और बिल्कुल बस 1 महीने के बाद इन लेडीज के मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं एंड दे ब्रेक द गुड न्यूज के बस आई हैव कंसीव्ड. और वो सारी की सारी अलामात जो एक प्रेग्नेंट फीमेल की होती है, लाइक नोजिया होना, फटीग होना, वो सारे के सारे उसमें शुरू हो जाते हैं साइकोलॉजिकली. हत्ता कि प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में कहा जाता है कि वो हो सकता है पॉजिटिव आ जाए, मोस्टली नेगेटिव आता है, मगर जब उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं there is nothing found in the uterus. तो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जिसमें पेशेंट्स बिगिन टू बिलीव कि वो प्रेग्नेंट हो गई है. इसीलिए बिल्कुल उस साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से उनके मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं, उनको नोजिया स्टार्ट हो जाता है, उनको सारे के सारे वही सिम्टम जो प्रेग्नेंट लेडीज को स्टार्ट होते हैं वही स्टार्ट हो जाते हैं. दैट इज कॉल्ड फॉल्स प्रेगनेंसी. ग्लोबस हिस्टेरिकस क्या है? इट इज अ sensation of lump in the throat. पेशेंट्स भी आप देखेंगे प्रेजेंट करते हैं साइकेट्रिक ओपीडी में कि डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल कुछ निगल नहीं पा रहा. डिस्फेजिया के साथ प्रेजेंट करते और वो कहते हैं कि आई गॉट अ लंप इन द थ्रोट एंड देयर इज नथिंग विजिबल, देयर इज नो एविडेंस ऑन एनी इन्वेस्टिगेशन कि उनके थ्रोट में कुछ भी हो. तो एक फंक्शनल कंडीशन है, साइकोलॉजिकल कंडीशन है. एंड देयर इज swooning और सिंकपीज फेंटिंग, बार बार बेहोश हो जाना, ये है सिंकपी. तो बेहोशी के अलामात के साथ पेशेंट्स प्रेजेंट कर सकते हैं. यूरिनरी रिटेंशन के साथ वो सारी गर्ल्स मोस्टली प्रेजेंट करती है कि दे कंप्लेन कि दे कैन नॉट पास यूरिन एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू पास यूरिन फॉर द लास्ट 24 hours. And again, the cause may be a stressor, cause may be psychological. Patients can present with diarrhea also. Now, epidemiology ये है कि per annum
out of 1 lakh, out of 100,000 individuals, 5 to 12 individuals कन्वर्जन डिसऑर्डर के प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये देखा गया कि एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जो लोग साइकेट्रिक कंसल्टेशंस के साथ के लिए प्रेजेंट करते हैं, साइकेट्रिक कंसल्टेशंस के लिए आते हैं, उनमें 5 to 15% में कन्वर्जन डिसऑर्डर हो सकता है। और ये देखा गया कि मिलिट्री हॉस्पिटल्स में, वेटरन्स हॉस्पिटल्स में या मिलिट्री हॉस्पिटल्स में 25 to 30% एडमिशंस इंडिविजुअल्स की वो कन्वर्जन डिसऑर्डर के साथ हो सकती है। आप आगे पढ़ेंगे मिलिट्री पर्सनल में कन्वर्जन डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा कॉमन है बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, द स्ट्रेसफुल कंडीशंस दे लिव इन। उनमें साइकेट्रिक वार्ड्स में कन्वर्जन डिसऑर्डर के साथ एडमिशंस कितनी है? 25 to 30%। हर 100 में 30 इंडिविजुअल कन्वर्जन डिसऑर्डर के होंगे। नेक्स्ट ये देखा गया कि वुमेन टू मैन रेशो जो है वो 2 to 1 से स्टार्ट करके 10 to 1 तक हो सकती है। यानी मिनिमम रेशो ये कि हर 2 फीमेल्स और हर एक मेल में कन्वर्जन डिसऑर्डर होगा, मगर जो हम देखते हैं फीमेल्स में कन्वर्जन बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो वो बता रहे कि 10 to 1 तक ये रेशो जा सकती है। और स्पेशली गर्ल्स में ये ज़्यादा कॉमन है। एसोसिएशन इन मैन इज विद मोस्टली एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मेन में 2 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में कन्वर्जन डिसऑर्डर्स, सॉरी, एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ये ज़्यादा कॉमन है एंटी सोशल में, और फीमेल्स में जिस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कन्वर्जन ज़्यादा कॉमन है दैट इज हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उनमें फिर अगेन कन्वर्जन ज़्यादा कॉमन है। इसका ऑनसेट लेट चाइल्डहुड से स्टार्ट करके टू 35 years of age तक हो सकता है। बिलो 10 years लेस कॉमन है, अबव 35 years लेस कॉमन। मगर इसके बहुत रेयर केसेस 9th डेकेड तक देखे गए हैं। यानी individuals with 90 plus of age they have also presented with conversion disorder। मगर एवरेज केसेस कब से कब तक आते हैं? अबव 10 years of age to 35 years of age। और ये देखा गया है कि जो मिडिल एज में या ओल्ड एज में कन्वर्जन डिसऑर्डर के साथ प्रेजेंट करते हैं, उनमें आपने लाजमी ऑर्गेनिक कॉज को एक्सक्लूड करना होगा। देयर माइट बी सम पैथोलॉजी। अदरवाइज आप अगर स्लेटर की स्टडी देखते हैं, स्लेटर की स्टडी 1965 की, उन्होंने ये कहा कि एक रिसर्च की गई है कि जिसमें देखा गया कि मोर देन 50% या अप टू 50%, 25 to 50% ऐसे इंडिविजुअल्स who were initially diagnosed with conversion disorder, later on they proved out to be organic causes, organic cases। तो लिहाजा ऑर्गेनिसिटी को एक्सक्लूड करना इंतहाई ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि एक पेशेंट इन एबनॉर्मल मूवमेंट्स शो कर रहा है और फेस पर ज़्यादा कंसर्न भी नहीं है और हम एकदम से लेबल कर ले कि ये कन्वर्जन डिसऑर्डर है। आई वॉज डूइंग ओपीडी विद अ न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो की रोटेशन में, तो इस तरह की एक लेडी प्रेजेंट उन्होंने किया विद एबनॉर्मल मूवमेंट्स, तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या हो सकता है। मैंने फौरन कहा कि कन्वर्जन डिसऑर्डर। वही तो साइकियाट्रिस्ट के एक रिफ्लेक्सेस बने कि हम फौरन कहते हैं कि कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप फौरन ये ना कहा करें, आप अपने रिफ्लेक्सेस इस तरह से बना लें हमेशा कि फर्स्ट आई हैव टू एक्सक्लूड द ऑर्गेनिक कॉज, आई हैव टू डू द सीटी स्कैन और एमआरआई और व्हाटएवर रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड, और उसके बाद उसको एक्सक्लूड करके फिर आप उसको लेबल किया करें जब आपको कंप्लीट हिस्ट्री भी मिले और ऑर्गेनिसिटी भी आप एक्सक्लूड कर चुके हो। तो स्लेटर की स्टडी में क्या कहा कि 25 to 50% ऐसे पेशेंट्स जिनको इनिशियली लेबल किया गया था एज केसेस ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर, दे लेटर ऑन प्रूव्ड टू बी केसेस ऑफ ऑर्गेनिक डिजीजेस। कुछ ट्रेंड्स ये देखे गए हैं कि conversion disorder is more common in rural areas, in less educated individuals, in individuals with low IQ,
in individuals with poor socio-economic status and in army personnel, ये 5 ट्रेंड्स देखे गए हैं। रूरल एरियाज में ये ज़्यादा कॉमन है और लेस एजुकेटेड इंडिविजुअल्स में ज़्यादा कॉमन है। जिनका आईक्यू कम होता है उनमें ज़्यादा कॉमन है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अगर पुअर हो उनमें ज़्यादा कॉमन ये केसेस देखे गए हैं। आर्मी स्टाफ मेंबर्स में बहुत ज़्यादा कन्वर्जन डिसऑर्डर के केसेस देखे गए हैं। इसके अलावा देयर इज इंक्रीज रिस्क इन मोनोजाइगोटिक ट्विन पेयर, जिसका मतलब ये कि जेनेटिक कॉज इसका क्लियर है, एविडेंट है। कोमोर्बिडिटी, पेशेंट्स कैन प्रेजेंट विद एंजाइटी डिसऑर्डर्स, anxiety disorder comorbid with convergent symptoms, depression comorbid with again convergent symptoms, schizophrenia and again comorbid with convergent symptoms, and next is personality disorder and neurological conditions. ऐसे पेशेंट्स जिनमें ट्रू एपिलेप्सी हो, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, वो फिर भी फॉल्स फिट्स के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी आप स्लाइड्स में पढ़िएगा। ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें ट्रू फिट्स हो उनमें भी फॉल्स फिट्स जाहिर हो सकते हैं। इवन विद यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस विद टर्न बाइट फॉल्स फिट्स आ सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि फिट्स के बाद उनका सीरम प्रोलैक्टिन लेवल रेज नहीं होगा, गैग रिफ्लेक्स उनका नॉर्मल होगा, पिपुलरी रिफ्लेक्स नॉर्मल होगा। बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो ट्रू फिट्स में होते हैं वो एब्सेंट होंगे, फॉल्स फिट्स हो सकती है। ईईजी पर एबनॉर्मलिटी नहीं होगी। नाउ एटियोलॉजी, साइकोडायनेमिक थ्योरीज के मुताबिक बहुत सिंपल उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए कि व्हाट इज द कॉज ऑफ convergent disorder. According to these theories, an emotional stress is converted into neurological symptoms. It is the explanation of psychodynamic theory. Freud ने कहा कि इमोशनल स्ट्रेस या एक अनरिजॉल्व्ड अनकॉन्शियस कंफ्लिक्ट कन्वर्ट हो जाता है फिजिकल सिम्टम्स में, एंड दैट इज द कॉज ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर। सोशल फैक्टर्स के मुताबिक, सोशल थ्योरी के मुताबिक, सोशल फैक्टर्स they are major determinants of, yeah, they are major triggers for conversion symptoms. और यही एग्जैक्टली हम देखते हैं behind every second individual who presents with conversion disorder there is a social factor involved, and mostly we say pathology lies in the family. लर्निंग थ्योरी के मुताबिक कन्वर्जन सिम्टम इज अ क्लासिकली कंडीशनड लर्निंग बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू देम, बच्चों ने जब बचपन में चाइल्डहुड में जो सीखा है कि जब वो बीमार होते थे किस तरह से उनको अटेंशन मिलती थी, किस तरह से बहुत सारी चीज़ों से उनको अवॉइडेंस मिल जाती थी, एक रेस्पाइट, एक रेस्ट टाइम मिल जाता था, तो वही बिहेवियर बाद में रिपीट होता है एडल्टहुड में। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट इज अ learned behavior, it is a conditioned learned behavior. Whatever you have learned in childhood that unconsciously is recalled in the adulthood, and that's what cognitive theory also states. न्यूरोसाइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स के मुताबिक ब्रेन के वो एरियाज जो एडवर्स इवेंट्स को या स्ट्रेसर्स को कन्फ्रंट करते हैं उनमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है। या फर्दर एक स्लाइड में पढ़ेंगे कि इस न्यूरोसाइकोलॉजिकल मैकेनिज्म के मुताबिक ब्रेन में दो हेमिस्फीयर्स है, एक है डोमिनेंट हेमिस्फीयर, एक है नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर। मोस्टली द लेफ्ट साइड इज डोमिनेंट हेमिस्फीयर। इस थ्योरी के मुताबिक जो नॉन डोमिनेंट
हेमिस्फीयर है, इसकी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है. इट शोज हाइपर मेटाबॉलिज्म. द डोमिनेंट हेमिस्फीयर, इट शोज हाइपोमेटाबॉलिज्म. इसकी मेटाबॉलिज्म कम हो जाती है. और दोनों हेमिस्फीयर्स के दरमियान जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है, ये प्रॉपरली नहीं हो पाता. There is no proper exchange of messages, impulses between the dominant and non-dominant hemispheres, and that's what is the cause of conversion disorder. The intention is not converted into action because of motor symptoms. उसकी explanation यहाँ से मिल रही है. जो हम कहते हैं कि एक पेशेंट अपने हाथ उठा नहीं सकता कन्वर्जन डिसऑर्डर में, वो अपने इंटेंशन को जो कि एक हेमिस्फीयर में है उसे एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकता जो कि दूसरे हेमिस्फीयर बॉडी के दूसरे साइड से कंट्रोल हो रहा है. So there is blockage or miscommunication between the two hemispheres. Cognitive explanation बिल्कुल वो लर्निंग थियरी के मुताबिक है. इसके मुताबिक आपकी मेमोरी में वो सारे के सारे सिम्टम्स स्टोर होते हैं जो आपने किसी और इंडिविजुअल में देखे या आपने खुद अर्लियर लाइफ में सफ़र किए, एक्सपीरियंस किए. बाद में किसी भी स्ट्रेसर के दौरान वही मेमोरी में जो स्टोर्ड सिम्टम्स है वो ट्रिगर हो जाते हैं, रीएक्टिवेट हो जाते हैं और आप ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली उन सिम्टम्स को शो करने लगते हैं. दोबारा सुनिए, आपके चाइल्डहुड में आपने खुद जो सिम्टम्स सफ़र किए हैं या किसी सिबलिंग में या एल्डर इंडिविजुअल में ऑब्जर्व किए हैं, वो सिम्टम्स आपके माइंड में स्टोर हुए होते हैं. बाद में एडल्ट लाइफ में जब भी आपको किसी स्ट्रेसर का सामना होता है और आप एक्सप्रेस नहीं करते, उसे कन्फ्रंट नहीं करते, तब जाकर वो ओल्ड सिम्टम जो आपकी मेमोरी में होते हैं वो दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाते हैं और आप वो सिम्टम्स शो करने लगते हैं. लास्ट कल्चरल एक्सप्लेनेशन, उसके बाद फिर हम अगला सेशन स्टार्ट करेंगे. इट इज़ द लास्ट मिनट ऑफ द सेशन. कल्चरल एक्सप्लेनेशन ये है कि अक्सर कल्चर्स में कन्वर्जन डिसऑर्डर को एक पोजेशन स्टेट कंसिडर किया जाता है. पोजेशन स्टेट. पोजेशन स्टेट. तो डिफरेंट कल्चर्स के मुताबिक कन्वर्जन डिसऑर्डर एक पोजीशन स्टेट है जिसमें एक इंडिविजुअल के अंदर एक रूह आ जाती है या उसके ऊपर एक असर आ जाता है. वो असर शो होता है एज कन्वर्जन सिम्पटम्स. तो ज़्यादा इस पर डिबेट्स होते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो आई एंड द सेशन हियर एंड आई विल रिकनेक्ट विद इन 5 minutes. बी ऑन टाइम फॉर दैट.